Good morning, students. Last day we taught you the chapter, 8 number chapter. The name of the chapter was Janmadinotsava. And what is the Sandhi Vichhed of this word? Janmadin plus Utsava. Two words we find here. Janmadin Utsava. जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन इज ऑल्सो लाइक अ फेस्टिवल, you celebrating in big, बहुत ही ऐसे उत्सव की तरह मनाते हो ना, बहुत खुश रहते हो, and all relatives and your friends and your neighbor also become so happy and they all gathering and जो है आपके उस खुशी में शामिल होते हैं and also become a like a festival. तो ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था और लास्ट का इसमें क्या होता है, एक धारा नाम की लड़की रहती है, देयर इज अ गर्ल नेम्ड धारा एंड शी हैज टू फ्रेंड्स, ममता एंड वैशाली. यू नो ममता एंड वैशाली, isn't it? What's the name of her friends? Written here, Mamta and Vaishali. And what they do? In beginning, the Dhara wears new clothes, and the mom makes so many sweets in her house, and they gives to her daughter to distribute these sweets in your school. You also bring some sweets and chocolates like that. And when Dhara come to school, they meet to her teacher. Her teacher's name is two teachers here. The first is Sujala Bhagini and second one is Veena Bhagini. So Sujala Bhagini asks her that what is today special? Why you are wearing as you wearing the new clothes and like so you are so happy and which something special? She asks her. Then she replied that yes ma'am, today is my birthday and please take this chocolate, these sweets. And she also asks that where is Veena Bhagini, the teacher Veena named. Then she said that she is in office. So the Dhara go to the office and requesting her that please come ma'am to the Prarthana, वो जो है prayer house. And the prayer house, the two friends of her, the Mamta brings the leaves of Asopalak's tree and makes a toran. And the second one is, second friend's name is here Vaishali. She decorating that place, that prayer house. And everybody comes there and all together celebrating the festival of the Janmadinotsava. Festival of Dhara's birthday. And then what happened? Then now the Dhara completed his tenure and he is now running off 11. So she flamed the 11 lamp there in front of the goddess Saraswati, and she prays to goddess Saraswati and everybody wishes her, everybody congratulates her. And also at last the teacher gives her blessings and they all together sings a slok, like slok. She gives her blessings actually, and this is in a slok. एक श्लोक के रूप में उसे आशीर्वाद देते हैं, सभी टीचर लोग उसे मिलकर बताते हैं. तो ये और बाद में यज्ञ भी होता है. उसके बाद ये इधर लिखा है ना कि बाद में एक छोटा यज्ञ भी करते हैं, सरस्वती माता की वंदना करते हैं और अक्षय पात्र में क्या करती है धारा, संकल्प करती है मुष्टिधान से. So the slokam, what is the slok? The teacher sings to bless her slok. Sada bhavatu sukhinah sadaiv cha niramayah. Sada bhavatu sukhinah sadaiv cha niramayah. Vidyavan yasasvinah bhavatu chirjivinah. Sada bhavatu sukhinah.
sukhina, always become happy. You stay happy and healthy. And also you also in your long life, become your long life. You always stay happy and healthy and long life, like that. And also meritorious, also you become meritorious, glorious, successful in your life. Also you get meritorious, also you become meritorious, glorious and become successful in your life. So here I am going to write this one. Teachers what says to the dhara, sada bhavatu sada bhavatu sukhinah. Sadaiv cha niramaya vidyavan yasasvinah. Vidyavan yasasvinah. Yasasvinah bhavatu chirjivinah. देखो 4 लाइन में ऐसे श्लोक लिखा जाता है और 2 लाइन में ऐसे जैसे बुक में है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग याद करना होगा इस श्लोक को कि क्या उसको जो है टीचर लोग कौन से श्लोक के रूप में कौन सा आशीर्वाद दिए, श्लोक गा करके क्या आशीर्वाद दिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो यू राइट दिस श्लोक फर्स्ट एंड द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सदा भवतु सुखिनः सदैव च निरामयः विद्यावान यशस्विनः भवतु चिरजीविनः। ये लिखिए आप लोगों ने, फिर मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। यू नो ऑल वर्ड्स मीनिंग। सदा मीन्स ऑलवेज एंड सदैव मीन्स ऑल्सो ऑलवेज। सदैव मतलब हमेशा ही, च मीन्स एंड यू नो, भवतु मतलब रहो, यू बिकम, सुखिनः happily, happy, you become happy and niramaya healthy. Vidyavan मतलब meritorious, you become meritorious, yasasvinah मतलब glorious and bhavatu chirjivinah and also you stay in long life. You आप लंबे समय तक जियो, दीर्घायु भव बोलते हैं ना, दीर्घायु। इसका क्या मतलब है कि हमेशा सुखी रहो। सदा भवतु सुखिनः हमेशा सुखी रहो। यू बिकम ऑलवेज हैप्पी, यू स्टे ऑलवेज हैप्पी एंड निरामयः हेल्दी, सदैव च निरामयः एंड हेल्दी। विद्यावान यशस्विनः भवतु मतलब यू बिकम मेरिटोरियस, ग्लोरियस इन योर लॉन्ग लाइफ, विथ योर लॉन्ग लाइफ। ऐसे विथ योर लॉन्ग लाइफ या इन योर लॉन्ग लाइफ, विथ योर लॉन्ग लाइफ लिख दो कि अपने चिरजीविना भव मतलब यू बिकम मेरिटोरियस, ग्लोरियस एंड विथ योर लॉन्ग लाइफ। अपने मतलब विथ योर लॉन्ग लाइफ हो गया कि दीर्घायु हो, अपने दीर्घ लंबी आयु के साथ आप विद्या भी पाओ, यश भी पाओ और सुखी पूर्वक और हेल्दी आप रहो, निरोगी रहो, स्वस्थ रहो हमेशा।
यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देती हूँ। ये आपकी बुक में भी लिखा है। ऐसे मैंने बता दिया कि अगर आप 4 लाइन में लिखना चाहो, एक लाइन में नहीं आ रहा है, छोटे छोटे अक्षर हो जाते हैं, घिच पिच हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, that's why you can write like that. This is the best manner to writing the any shlokas. So सदा भवतु सुखिना, always, you always, you से शुरू करो, यहाँ से you always, you always stay happy, happy and healthy. हो गया पहला लाइन सुखिना एंड निरामय। यू ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये अगर नहीं आ रहा है तो ये लिखो, ऐसा लिखो, यू ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हैप्पी एंड हेल्दी, यहाँ पे फुल स्टॉप। विद्यावान यशस्विनः, एंड मतलब हो गया हैप्पी एंड हेल्दी। ऑल्सो, यू ऑल्सो बिकम, यू ऑल्सो बिकम, ये अपने मन से जोड़ा जा सकता है। You also become meritorious, You also become meritorious, glorious. Glorious का नहीं मतलब जो है ना यशस्विना, यशस्विना मतलब glorious। RIOUS, glorious। You also become meritorious, glorious and successful, and also become meritorious, glorious and successful, success with your long life। विथ योर लॉन्ग लाइफ दे दिया का मतलब हो गया दीर्घायु। विथ योर लॉन्ग लाइफ, अपने लॉन्ग लाइफ के साथ, मतलब आप दीर्घायु हो और क्या क्या पाओ, मेरिटोरियस, विद्यावान भवतु एंड यशस्विना भवतु, मतलब आप ग्लोरियस पाओ, आप यश पाओ और सक्सेस पाओ। ऑल्सो मीनिंग यू एंड यू बिकम मेरिटोरियस, ग्लोरियस, सक्सेसफुल, सक्सेस एंड सक्सेस विथ योर लॉन्ग लाइफ। Understood? This is the meaning of this sloka. This is a blessing. You can also say to anyone in birthday, anybody's birthday, then you want to bless him in Sanskrit, bless her in Sanskrit. Then you say this one, this slokas, and also this meaning. And केवल इतना भी बोल सकते हो, सदा भवतु सुखिनः। हाँ, सदा भवतु सुखिनः, you always become happy। सदैव च निरामया, you always become healthy, you stay healthy and happy, ऐसे बोलते हैं ना। That is written here कि सदा भवतु सुखिनः, सदैव च निरामया, you always, you stay happily and healthy with your long life। एंड दीर्घायु हो, अविद्यावान हो, यशस्विनी हो, ये सब तो बहुत सारे उसके विशेषण है, बहुत सारी बातें साथ में जोड़ दी जाती है।
अनंतरम का मीन्स होता है देन, इसके बाद, देन। आम्रपाली वृक्ष मैंने बताया था, आसोपालव ट्री, आनयति इज ब्रिंगिंग, प्रज्वालयति इज लाइटिंग, मतलब जलाती है, प्रज्वालयति मतलब जलाती है, स्थापयति मतलब रखती है, वहाँ पे रखती है, स्थापित करती है, किसी चीज को स्थापित करना मतलब वहाँ पे रखना। जैसे भगवान को ज्यादातर पूजा पाठ में स्थापना की जाती है, स्थापित की जाती है, दैट इज रिटन हियर की धारा अक्षय पात्रे मुष्टि धारम स्थापयति, कोई अक्षय पात्र है, कोई बाउल है या कोई लुटिया है, इस टाइप का चीज है, उसमें वो ग्रेन, वो धान, जानते हो ना आप लोग, धान को वो रखती है। So see the exercise of this chapter. Pronounce the following words and copy them. अच्छे से प्रोनाउंस करना है, मेरे साथ साथ बोलो। जन्मदिनोत्सवः, धीरे धीरे बोलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। जन्मदिन तो सबको बोलना आता है ना, उसमें उत्सव वर्ड जुड़ा हुआ है और जन्मदिन का न और उ, न का अ और उ, बाद में जो स्वर वर्ण है वो मिलकर के ओ हो जाता है। तो यहाँ पे जन्मदिनोत्सवः, जन्मदिनोत्सवः, आधा त है, जल्दी से त बोलना है। जन्मदिनोत्सवः विसर्ग है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, उस पर जोर डालते हैं, बट उसमें लिखने में ह नहीं लिखना है, विसर्ग को ह की तरह उच्चारण मात्र करते हैं। तो जन्मदिनोत्सवः। मिष्टान्नम, आधा स है इसलिए स ट संयुक्त है तो जल्दी से बोलना है मिष्टा, और न संयुक्त है इसलिए न पे जोर डालना है, थोड़ा सा जोर से बोलना है। मिष्टान्नम, म में हलंत, मिष्टान्नम। अभिनंदनम, अभिनंदनम। आम्रपाली वृक्षस्य, आम्रपाली वृक्षस्य। एकादश दीपान, एकादश दीपान। प्रज्वालयति, प्रज्वालयति। अंडरस्टूड? तो ये इस तरह से आप लोगों को करना है। देखो, जन्मदिनोत्सव, अब इसका संधि विच्छेद भी कर, ये जन्मदिनोत्सव का जो मैंने बताया था, जन्मदिन प्लस उत्सव। मिष्टान्नम का कुछ नहीं होगा, अभिनंदनम का भी नहीं होगा, अभि प्लस नंदनम कर सकते हो, बट नहीं, इसका नहीं करना है। ये एक अलग वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आम्रपाली वृक्षस्य, आम्रपाली प्लस वृक्षस्य, स्य लग गया है तो कौन सा केस हो गया? इन सिक्स्थ केस। और क्या साइन हो गया? ऑफ, टाके की राडेडी। एकादश दीपान, एकादश प्लस दीपान, एकादश दीपान का संधि विच्छेद अब हो सकता है। एकादश प्लस दीपान, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, इसी चैप्टर का जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने बताया था। प्रज्वालयति, प्र प्लस ज्वालयति, प्र उपसर्ग लग गया, ज्वालयति मतलब उसको जलाती है, और ज्यादा उसमें प्र उपसर्ग लगने से क्या है, उसका उपसर्ग जो है उसका विशेष मीनिंग बताता है, उसमें विशेषता आ गई। ज्वालयति मतलब सीधा जलाती है, प्रज्वालयति मतलब विशेष उसमें रोशनी, वो कुछ खास उत्सव का दिन है ना, इसीलिए वो विशेष दीपक बन गया वो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। फर्स्ट वन, कस्याः जन्मदिनम् अस्ति? कस्याः जन्मदिनम् अस्ति? तो क्या लिखेंगे? कस्याः की धारा का है ना, द whose birthday in this chapter? धारायाः, लिखे ना कि धारा का बर्थडे है, धारा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो कस्याः है तो वैसे ही लिखेंगे जैसे कस्याः वर्ड है तो वहां भी लिखेंगे धारायाः। कस्याः को हटा के लिख देना है धारायाः। एक चीज मार्क करो कि जैसे कस्याः है, जिस रूप में है, षष्ठी में है, तो धारायाः भी उसी रूप में लिखना है, धारायाः। और बाकी जो सेम क्वेश्चन में रहेगा वही लिखना है, मारायाः जन्मदिनम् अस्ति।
किसका बर्थडे? कस्या मतलब किसका? whose। तो धाराया मतलब धारा का, ऑफ धारास। धारा जन्मदिनोत्सवे कस्या वंदनाम करोति। फिर से कस्या वर्ड आया, देखो धारा जन्मदिनोत्सवे मतलब इन हर जन्मदिन, इन हर बर्थडे कस्या वंदनाम करोति, whom she is praying, किसकी वंदना कर रही है? तो लिखा है ना सरस्वती माता, गॉडेस सरस्वती। तो आपको लिखना है धारा जन्मदिनोत्सवे कस्या की जगह सरस्वती मातुः, सरस्वत्या लिख सकते हैं, पर सरस्वत्या कोई लड़की का नाम नहीं है सरस्वती, कोई सिंपल लड़की होती तो हम लिख सकते थे सरस्वत्या, बट यहाँ क्या है सरस्वती गॉड है, देवी सरस्वती लिख सकते हैं या सरस्वती मातु लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके बुक में भी सरस्वती मातु लिखा है ना, हम लोग बोलते हैं ना सरस्वती माता, हाँ, तो दैट्स व्हाई यू आल्सो राइट हियर धारा जन्मदिनोत्सवे कस्या की जगह सरस्वती मातु और फिर यही वंदनाम करोति। धारा जन्म दिनोत्सवे सरस्वती मातुः वंदनाम करोति। धारा कति दीपान प्रज्वालयति, कति मतलब कितने, हाउ मेनी, कति मीन्स हाउ मेनी, अगर नहीं आता है तो लिख लो कति का मतलब हाउ मेनी, साइड में लिखो कहीं पे कति। कति मीन्स हाउ मेनी, हाउ मेनी। तो पूछ रहे हैं कि धारा कितने दीप को जलाती है, तो धारा एकादश दीपान प्रज्वालयति, एकादश दीपान, ऊपर लिखा है ना एकादश, धारा एकादश दीपान प्रज्वालयति, प्रज्वालयति, अंडरस्टूड। एंड फोर्थ वन इज धारा अक्षय पात्रे किम स्थापयति, अक्षय पात्र में जो मुष्टि से बताया गया है तो वो धारा अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति, मुष्टिधानम बस वर्ड आपको याद रखना है। धारा अक्षय पात्रे किम स्थापयति, किम मतलब व्हाट, किम का मतलब है व्हाट, तो धारा अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति। बहुत इजी है याद रखना, मुष्टि, जैसे कि आप संकल्प देखते हो कि ये मुष्टि मतलब मुट्ठी, तो ये मुट्ठी में क्या कुछ चावल वावल देते हैं पंडित जी, तो ये चावल धान्यम आपको याद रखना है, ये मुट्ठी को मुष्टि आप लोग याद रखना चाहिए, मुष्टि धान्यम। धारा अक्षय पात्रे, अक्षय पात्रे मुष्टिधान्यम स्थापयति, ठीक है। पांचवा है वैशाली किम करोति, वैशाली किम करोति, दो फ्रेंड है ना, एक ममता है एक वैशाली है, तो वैशाली डेकोरेट कर रही है, ममता वो आसो पालक लाके उसका वो तोरण बना रही है, वैशाली डेकोरेट कर रही है, तो वैशाली प्रार्थना
सुशोभनम करोति। वो डेकोरेटिंग को ये थोड़ा सा वर्ड आप लोगों को हार्ड लगेगा तो याद रखना कि प्रार्थना खंडम सुशोभनम करोति या प्रार्थना खंड में सजा रही है। प्रार्थना खंडम भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा और प्रार्थना खंडे भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। तो वैसा ही प्रार्थना खंडे मतलब प्रार्थना खंड में वहां पे उस प्लेस में डेकोरेटिंग कर रही है। प्रार्थना खंडे सुशोभनम करोति। ठीक है। राइट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अभी वर्ब बोल रहे, जितने भी वर्ब लेसन में आए हैं वो आप लोगों को इसमें लिखते जाना है। इसके लिए क्या है कि आपको जब आप पढ़े रहोगे, ये चैप्टर पढ़े रहोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा क्या क्या वर्ब है। जैसे धारयति है तो इस तरह के कौन कौन से वर्ड हैं, एटलीस्ट 10 है। यह प्रज्वालयति, स्थापयति, वितरति, अनुभवति, करोति, भवति, गच्छति, ददाति, सुशोभनम करोति, आनयति, इस तरह धारयति, आगच्छ, आनयति, ग्रंथति, ऐसे 10 वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप लोग लिख लोगे, नहीं तो नेक्स्ट डे मैं लिखवा दूंगी। और 2 हो गए, 3rd, 4th, 5th एंड 6th में कुछ नहीं है। इन योर नोटबुक राइट द वर्ड्स विच योर टीचर dictates you from this lesson. Take care of the spelling. Get your written words checked by either your teacher or your co-student. If you find any mistake, take care of it. See what is written here कि आपको spelling mistakes नहीं होने चाहिए। हाँ, spelling is very necessary in Sanskrit. Otherwise the number will cut. Okay? तो today के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम लोग पार्ट 3rd में एक कंप्लीट पूरा करवा दूंगी। तब तक आप लोग इसे घर पे पढ़ना। ओके?